اس وقت آپ یوٹیوب چینل انکشاف دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کے سامنے پروفیسر امجد نذیر نازک بات کر رہا ہوں۔ آج ہم چندریان اور پرگیان کے عنوان پر بات کریں گے۔ چاندنی رات تھی، گرمیوں کے دن، ماں اپنے بچے کو کھلے آسمان تلے سلانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ پھر یوں ہوا، ماں نے اپنی انگلی سے آسمان پر موجود جگمگ کرتے چاند کی طرف اشارہ کیا اور سریلی آواز سے ترنم سے گانا شروع کیا۔ دم بھر جو ادھر منہ پھیرے، او چندا میں تجھ سے پیار کر لوں گی، باتیں ہزار کر لوں گی۔ اب بچے نے چاند کی طرف دیکھا اور اس کے سحر میں کھو گیا۔ تو ماں نے لوری گانی شروع کر دی۔ چندا ماموں دور کے، بڑے پکائے بور کے، آپ کھائیں تھالی میں، ہم کو دیں پیالی میں۔ پیالی گئی ٹوٹ، چندا ماموں گئے روٹ۔ ابھی لوری ختم نہ ہوئی تھی کہ ماں نے دیکھا چاند سا بیٹا سو گیا ہے، تو اسے بھی قرار آ گیا۔ لیکن دنیا بھر میں سائنسدان چاند کو اور ہی نظر سے دیکھتے ہیں۔ وہاں گڑھے ہیں، گرد ہے اور وہ ایک سورج کا ذیلی سیارہ ہے، یعنی زمین کا چاند ہے۔ زمین والوں کا چاند ہے، جیسے صحراؤں میں دولت ہے، تیل کی، گیس کی اور خزانے ہیں، چاند بھی ان سے خالی نہیں۔ اب تک چاند پر اترنے میں چین، روس اور امریکہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ ہندوستان نے بھی 23 اگست 2023 کو شام 6:04 کے وقت پر یہ مارکہ سر کر لیا۔ اس طرح وہ دنیا کا چوتھا ملک بن گیا جس نے چاند کو مسخر کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ بھارت کا چاند پر پہنچ جانا یا چاند تک رسائی حاصل کرنا ترتیب کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر آتا ہے، لیکن ایک دوسرے پہلو سے اسے اولیت کا اعزاز بھی حاصل ہوا ہے۔ چاند کا قطب جنوبی ایک مشکل علاقہ ہے، جہاں تک جانا بھی مشکل ہے۔ اس سے پہلے کوئی ملک وہاں تک جانے میں کامیاب نہیں ہوا، بلکہ روس نے تو ایک تیز ترین راکٹ لونا 25 خلائی جہاز 47 سال بعد قطب جنوبی پر پہنچنے کے لیے روانہ کیا۔ روس کی سرکاری خلائی کارپوریشن روسکوسموس کے مطابق اس کا جہاز پر تکنیکی کنٹرول ختم ہو گیا اور جہاز چاند کی سطح سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ روس کی یہ خلائی پرواز 11 اگست 2023 کو شروع ہوئی اور 18 اگست 2023 کو ختم ہو گئی، یعنی جس تیزی سے وہ چاند کی طرف گیا اسی تیزی سے وہ ختم بھی ہو گیا۔ دوسری طرف بھارت نے بالکل نئی تکنیک اور سائنسی اصول کے استعمال کو زیر عمل لاتے ہوئے اپنا خلائی جہاز چندریان 3 14 جولائی 2023 کو سری ہری کوٹا اسپیس سینٹر سے لانچ کیا تھا۔ اس سے پہلے ہندوستان چندریان 1 اور چندریان 2 بھی اس مشن کے لیے روانہ کر چکا ہے۔ چندریان 2 اینڈ لینڈنگ کے وقت تباہ ہو گیا تھا، اس وقت ایک کامیابی ضرور حاصل ہوئی۔ چندریان 2 کے ساتھ منسلکہ مصنوعی سیارہ آربیٹر اب تک کامیابی سے چاند کے گرد چکر لگا کر مفید معلومات مہیا کر رہا ہے۔ چندریان 3 مشن پروپلشن، لینڈر اور روور پر مشتمل تھا۔ تینوں حصے بڑے کامیابی سے اپنا اپنا کام سر انجام دیتے رہے اور انڈیا کو کامیابی حاصل ہو گئی۔ پروپلشن کا کام لینڈر اور روور کو چاند سے 100 کلومیٹر کی دوری تک لے جانا تھا، یہ کام ہو گیا۔ لینڈر کا کام روور کو چاند کی سطح پر صاف لینڈنگ مہیا کرنا تھا، یہ کام بھی ہو گیا۔ 14 دن تک روور چاند سے چاند کی سطح کے نمونے زمین پر تصاویر کی شکل میں ارسال کرتا رہے گا۔ لینڈر کا نام وکرم
डॉक्टर विक्रम ए साराभाई के नाम से मंसूब है। उन्हें हिंदुस्तान के स्पेस प्रोग्राम का बानी कहा जाता है। रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है, जो संस्कृत जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है दानाई, अक्लमंदी और हिकमत। चांद की तरफ इंडिया का ये पहला कदम उसे खलाई दौड़ में दूसरे ममालिक की फहरिस्त में बहुत आगे ले गया है। चांद के बारे में बहुत कुछ समझना अभी बाकी है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहान और भी है। भारत को जो अवलियत मिलनी थी मिल गई। भारत ने इस सिलसिला के कई प्रोग्राम शुरू कर रखे हैं। वो चाहता है अपने गगनयान मिशन के तहत जमीन के मदार में इंसान बरदार मिशन भी भेजे। भारत ने बहुत कम लागत में इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, जो दूसरे ममालिक के लिए एक नई और सस्ती तकनीक का इंदिया है। मुनासिब मालूम होता है भारत के इस सोच के मुकाबले में जदीद दुनिया की जदीद सोच, जो कि हमारी तरक्की की राह में रुकावट है, उसका भी कुछ तज़किरा हो जाए। चांद गाड़ी को हिंदुस्तान संस्कृत की ज़बान में चंद्रयान पकारते हैं। यानी चांद गाड़ी को हिंदुस्तान में संस्कृत की ज़बान में चंद्रयान पकारते हैं। भारत में गैर मुल्की गाड़ी जैसे जिसे कार बोलते हैं, वो अपनी ही बनाई हुई गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। इस तरह वो अपनी दौलत गैर मुल्कों में नहीं जाने देते। उनका मुल्क गरीब होने से बचा हुआ है और दिवालिया होने के खतरे से दो चार नहीं। जहां गैर मुल्की कारों को मायार यानी लाइफ ऑफ स्टेटस, जिंदगी और अमीरी के इजहार के लिए पसंद किया जाए, वहाँ रुपया भी बेकार कामों में ही जाएगा। वो कौम क्या तरक्की करेगी जिसके बच्चे, नौजवान, जवान और बूढ़े एक मोबाइल की स्क्रीन में से ही आज़ाद ना हो, क्योंकि वो इसे ही जिद्दत ख्याल करते हैं। गटिया जुगतबाजी, टिकटॉकर बनना उनकी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन बन गया है। वो साइंसी इसबाक को वक़्त का ज़िया समझते हैं। पैसा कमाना, उसका इजहार करना ही ज़िंदगी का मतमय नज़र हो तो अजराम फल्की की तस्खीर के ख्वाब कौन देखे। सियासी राना साहब के इस बारे में अपने ख्यालात हैं। वो कहते हैं, अगर हम लश पश गैर मुल्की गाड़ियाँ ना खरीदें तो हम पर से आलमी राय अम्मा का एतबार उठ जाएगा। वो हमें गरीब मुल्क समझने लग जाएंगे। आपको तो पता है गरीब की कोई इज्जत नहीं, इसलिए हम पाबंद हैं, जाए लाख रहे साख। हमारी हालत देखकर हमें कोई कर्ज नहीं देगा और IMF भी नाराज हो जाएगा। ऐसे में ना हमें कर्ज मिलेगा, ना और अमदाद मिलेगी। हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, हमारे कारोबार तबाह हो जाएंगे, रह जाएंगे तुम्हारे अजरामे फल की। चांद चमकता रहेगा, सूरज दमकता रहेगा, डर काहे का। वो अपना काम करें, हम अपना काम करते रहेंगे। अगर किसी ने चांद पर चांद गाड़ी उतारी है तो क्या है, हमने भी केबल कार या लट्टी डोली से 8 अदर इंसान जमीन पर बहिफाजत उतारे हैं। ये बहुत बड़ा कारनामा है। इंसान की जान बड़ी कीमती होती है। अल्लामा कमर कमरी साहब ने भारत के चांद पर रोवर उतारने पर अपनी कीमती राय से नवाजा है। वो कहते हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म है। कुदरत के कामों में दखल देना हम इंसानों का काम नहीं। ये चांद के खिलाफ हनूदो यहूद की आलमी साजिश का हिस्सा है। 23 अगस्त 2023 को सफरुल मुजफ्फर कमरी साल के दूसरे महीने की सिर्फ 6 तारीख है। अभी हफ्ता पहले चांद पैदा हुआ है। ये उस पर चढ़ दौड़े। मासूम मुश्किल से अभी 6 दिन का भी नहीं हुआ, उस पर खलाई गाड़ी चढ़ा दी। ये बहुत बड़ा जुल्म है। इस घिनौने अमल की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। बाहर गली में खेलने वाले 2 बच्चे आपस में बातें करते रोने लग गए। वो कह रहे थे, चांद पर इंडिया का कब्जा हमारे लिए बासे नदामत है। मटकू और फुलकू बहुत देर दिलगीर थे। पहले ही हमारे घर में बिजली चली जाती है। हम रात का खाना भी चांद की चांदनी में खाते हैं। इंडिया ने चांदनी रोक दी तो बहुत मसला बन जाएगा। मेरे ख्याल में उन दोनों के रोने की वजह कुछ समझ आती है। कितने दुखी हैं मटकू और फुलकू। मटकू तो फिर भी मटके की तरह सेहतमंद है। फुलकू जो फुलके की तरह हल्का फुल्का है, उसका क्या बनेगा।
एंड इस वक्त जब भारतीय विक्रम चांद पर उतर गया, मैंने सोचा देखे मुल्की मीडिया खास तौर पर टीवी चैनल क्या रद्द अमल दे रहे। अक्सर टीवी चैनलों को मैंने इस मौजू पर बेखबर पाया। एक टीवी चैनल पर इंतहाई खुशखबर खबर चल रही थी, एक हिंदुस्तानी जासूस को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो नापाक इरादों से धरती के खिलाफ गहरी साजिश में मसरूफ और हसास मकामात की तस्वीरें बना रहा था। इसी वक्त मेरा एक अबलागी से रब्ता हुआ, वो भी जासूस की गिरफ्तारी पर अपने इत्मीनान का इजहार कर रहा था। मैंने सवाल करके वजाहत चाहिए, आप कितने जासूस गिरफ्तार करेंगे? भारत के तो कई खलाई सैटेलाइट जमीन और चांद के गिर चक्कर लगा रहे हैं, वो तो हर मकाम की तस्वीरें बना सकता है। मौजूद साफ़ी ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। भारत में इतनी जुर्रत नहीं हमारी फ़ज़ाई सरहदों की खिलाफ वर्जी करे। सारी दुनिया हमारी खुफिया एजेंसियों की तारीफ करती है, बल्कि इस पर लर्जा तारी रहता है। हमारा एक नौजवान गैर मुल्कों के 10 जवानों पर भारी है। रही बात इसरो की, वो तो इस तरह की बातें करता ही रहता है। हमारे नौजवान चांद से नफरत नहीं करते, वो तो इसके दिलदादा हैं, लेकिन उन्हें अभी ज़मीन के चांदों से फुर्सत नहीं। जब वो इनसे निपट लेंगे तो ये आसमानी चांद कांप जाएगा। सितारे तो पहले ही कांप कर थक चुके हैं, कहीं ये टूटा हुआ तारा माहे कामल ना हो जाए। हमें साइंसदानों से क्या लेना देना? ये लोग तो ऐसी बातें करते हैं जिनको बहुत से लोग सुनते ही झुठला देते हैं। हम हुकूमतें बनाते हैं, तोड़ते हैं, भूल जाते हैं, फिर बनाते हैं। इस काम में कोई हमसे आगे नहीं निकल सकता। अवाम के लिए तफरी और मुल्क के लिए माहिर वजीरों की फौज तैयार करना आसान काम नहीं। मेरे कहने पर अबलागी साहब कोई साइंस की बात करें तो उनने जट ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया, छोड़ें जी, साइंस का क्या है, इससे कौन सा रोज़गार मिलता है। मैं समझ गया, जहाँ लोग बेरोज़गारी के चुंगल में फंसे हों, वहाँ साइंस की सोच कहाँ से पैदा हो। वाकया हम जैसा कोई नहीं। हम कानून के बिल फाड़ देते हैं, करारदादें फाड़ देते हैं और सैफर हवा में लहराकर मजमा मशहूर कर सकते हैं। हमारे मुल्क का हर पीरो जवान कलाशनकोफ लहराने में माहिर है। और ये कैसे जमहूरी मुल्क हैं, हुकूमत बनाकर सोए रहते हैं। जल्दी जल्दी हुकूमत बदलना उनकी किस्मत में नहीं है। इंडिया का क्या है, एक गरीब मुल्क है, हम तो सिर्फ बेरोज़गार हैं। वो रोवर का नाम प्रज्ञान रख कर हमसे आगे कैसे निकल सकता है। हिकमत व धनाई तो उर्दू के अल्फाज हैं, पर ज्ञान के मानी तो हमारे ही हैं। रब रख।